کسی کے پاس اپنے جیب ہی دیکھ لو، میری جیب میں نہیں ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ سارے اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے، اور جو فائنانس منسٹر کی ایک کوشش تھی کہ ہمارا جو روپی ڈالر کا جو پیرٹی ہے وہ ایک قائم رہے، لیکن بہرحال میں تفصیل میں جائے بغیر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جو ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اور بورڈ میں جو ان کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں میں نے بتایا کہ جو ایک یقیناً جو سبسڈیز بعض ہماری ہیں ان کو آئی ایم ایف نے کم کروایا. انہوں نے کہا کہ آپ جو غریب طبقہ اس کو دیں، لیکن اس کی تفصیل میں پھر جائے بغیر کہ غریب طبقے کی جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں، غربت اب انفارچونیٹلی بڑی ہے، تو اس کو ہم کور دینے کے لیے ان کے پیرامیٹرز ہیں. بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو قوم کے سامنے ہیں، اور میں آج ماضی میں نہیں جھانکوں گا، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے قوم کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور قوم اچھی طرح جانتی ہے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے ہی، یاد تازہ کرنے کے لیے، کہ 75 سال میں جو آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر، جو متوسط طبقہ ہے، جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی، ہمیشہ انہوں نے قربانی دی، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. اگر 65 کی جنگ کے نتیجے میں اگر مالی معاملات اگر سخت ہوئے تو غریب آدمی نے اس کو برداشت کیا. اگر یہاں پر زلزلہ آیا تو اس کے نتیجے میں غریب آدمی پسا. اگر سیلاب آئے تو اس کے نتیجے میں غریب اور یتیم اور بیوہ ان کی زندگی اور تنگ ہو گئی. اور اگر 75 سال میں حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے یا اور دوسرے معاملات کیے تو اس کا سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا. اور آج تک 75 سال میں چاہے اشرافیہ ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل اور نعمتوں سے نوازا ہے، ان کا ان ادوار میں اور ان موقعوں پر ضرور صاحب حیثیت دل میں خدا کا خوف رکھنے والے لوگ یا کاروباری حضرات انہوں نے ضرور اس میں حصہ ڈالا، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن جو حق تھا اشرافیہ کا، جس میں حکومتیں بھی شامل ہیں اور صاحب ثروت لوگ بھی شامل ہیں، وہ حق ادا نہ ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ 75 سال آج تک غریب آدمی، بیوہ اور یتیم وہ پستے آئے. جو امراء ہیں، اشرافیہ جو ہے، اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو شمالی امریکہ میں علاج وہ کروا سکتے ہیں، وہ جنوبی فرانس میں اس کا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، ان کے بچے، ان کو جب ان کے بچے یا ان کا ایک کمانے والا گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے تو پورا خاندان اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ علاج کہاں سے ہوگا. اور میں بغیر کسی سیاسی بحث میں جائے یہ کہوں گا کہ جس دور میں علاج فری ہوا تو پھر اس کے بعد جو دور آئے انہوں نے تمام ادویات فری ختم کر دی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، اس دنیا سے چلے گئے اس لیے نام نہیں لوں گا، کہ ایک ان کے، میں غریب الوطنی میں تھا تو میں نے پریس کانفرنس دیکھی تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ کڈنی کا علاج فری تھا وہ ختم ہو گیا. ان کا تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، غریب اور یتیم کے لیے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور امراء کے نخرے اٹھانے کے لیے ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو بدقسمتی سے ہمارے ان 75 سالوں میں جس نے اس معاشرے میں زہر گھولا ہے. اور ابھی مجھے وزیر خزانہ نے
अभी बताया कि IMF से कम आमदनी वाले के लिए 40 अरब रुपए भी एग्री हुए हैं कि ये रकम उन पर खर्च की जाएगी। बिस्प की वजीफ़ा में 25% इजाफ़ा किया जा रहा है। ये ज़रूर इजाफ़ा में मनवाया हमने, लेकिन उसका जो हमारे मुल्क के अंदर आज जो चैलेंजेस हैं, जो माशी जो चैलेंजेस हैं, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह मज़ीद उसमें हम इक़दाम उठाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आज हमने काबीना में जो 2.5 घंटे हमने बड़ी तफसील के साथ बहस की कि ये जो IMF का जो प्रोग्राम अब आएगा इंशाअल्लाह, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज़रूर ये कुछ मुश्किलात आएंगी, लेकिन मुझे अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि हम अपनी इस मखलूत हुकूमत के जो अकाबरीन यहाँ बैठे हैं और आपके तावन से, आवाम के तावन से ज़रूर हम इंशाअल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला के फजल करम से मुश्किलात से निकालेंगे। गिले हैं कि जी फ़लाँ मामला ऐसा है, फ़लाँ मामला ऐसा है, इंशाअल्लाह, और गिले होते हैं, क्यों नहीं होते, उनको सुनना भी चाहिए, उनको एड्रेस भी करना चाहिए। लेकिन ये आपको मैं इत्मीनान दिलाता हूँ कि पूरी इसमें एक काविश है कि हम इन मुश्किलात से हम पाकिस्तान को निकालें, और ये काविश, ये कोशिशें इज्तिमाई हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, ये इज्तिमाई काविशें हैं। और आपको याद है कि मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोज़गारी से निजात दिलानी है, खुशहाली की तरफ जाना है, कायद आज़म का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर करना है, तो फिर इज्तिमाई काविशें करनी होंगी, जिसमें सियासी हुकूमतें और जो इदारे मिलकर अगर कदम उठाएंगे अपने आइनी दायरे में रहकर, तो उसके लिए ये इज्तिमाई काविशें जारी हैं। उसकी तफसील मैं आपको यहाँ पर नहीं बताना चाहता, लेकिन आपके इल्म में है कि इज्तिमाई काविशें जारी हैं, और इंशाअल्लाह खुदा ताला ज़रूर पाकिस्तान पर अपना फजल करम करेंगे और कमाल मेहरबानी से हमें इन मुश्किलात से निकालेंगे। लिहाजा ये हमने तय किया था, हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत ने पिछली जो कैबिनेट मीटिंग हुई कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये हम ये IMF के साथ करने जा रहे हैं, ज़रूर मजबूरी है, हमें करना होगा। काश वो एक दिन हमारी ज़िंदगी में आए कि IMF के बग़ैर पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में रवां दवां हो। इंशाअल्लाह वो आएगा दिन, मगर इसके नतीजे में जो आम आदमी के ऊपर अगर बोझ पड़ना है तो वो पूछेगा। मैरान की वादियों में एक बेवा पूछेगी, इनके जो फ़र्क पोश जो पहाड़ हैं, जो हमारे KPK के, वहाँ पर एक नौजवान पूछेगा, बेरोज़गार, पंजाब के मैदानों में यतीम पूछेगा, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में एक बेरोज़गार पूछेगा कि जनाब ये हुआ और बताया गया कि IMF की हमें कंडीशंस पूरी करनी है, शराइत पूरी करनी है। तो हुकूमत ने इस बारे में क्या ऐसे इक़दामात उठाए हैं जिससे कि शायद उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें तो हम कोई खाता खा कमी ना ला सकें, लेकिन ऐसे संजीदा इक़दामात से कि हम उनकी जो अशकशोई कर सकें, उनकी जो तकलीफ़ है उसको कम कर सकें। उनके साथ अभी मैं काबीना में मैंने जुमला अदा किया कि अब किसी महल्ले में गरीब आदमी के साथ कोई वो बेचारा दुखी होता है तो कोई वहाँ पर अपने खुदा तर्स उसके साथ उसको बगलगीर हो जाता है, उससे उसका दुख आधा हो जाता है कि यार मुझे कोई पूछने आया है, मेरा कोई हाल पूछने आया है, कोई मेरे दुखों में शरीक होने आया है। तो इस मीटिंग के नतीजे में जो पिछली बार हमने की काबीना की, हमने फिर बाकायदा एक कमेटी बनाई जिन्होंने दिन रात काम किया कि वो कौन से इक़दामात हैं जिससे हम यानी जेन्युइन हम ये खाली ऑप्टिक्स नहीं, जेन्युइन जिससे कि हम इस कौम को बता सकें कि ये मखलूत हुकूमत, ये जो IMF के प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, एक हमारी मजबूरी है, हमने मुल्क को आगे लेके जाना और इंशाअल्लाह इसके छुटकारा भी हासिल करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम हुकूमत
وہ کہتے ہیں انگریزی میں ایک جملہ ہے کہ لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل، ذاتی مثال سے ہم وہ کیا چیزیں کر سکتے ہیں جس سے کہ اس قوم میں ایک شعور ابھرے گا، ایک امید کی کرن آئے گی، اور ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے، اس میں کاروباری حضرات بھی اس میں حصہ ڈالے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اور اثار اور قربانی سے کام لیں کہ 75 سال اثار اور قربانی صرف اور صرف اس ملک کے غریب طبقوں نے انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج کی پھر 2.5 گھنٹے کی جو ہم نے بڑی اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی ہے تمام پارٹیز نے، اس کے نتیجے میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں۔ نمبر 1، اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضا کرانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا
90,000 रुपया या 80,000 जो भी है, तो जो यानी मोनेटाइजेशन के तहत पैसे ले रहा है और साथ गाड़ी भी रखी हुई, इसकी इजाज़त मुकम्मल तौर पर इसके ममनू है। ये गलत था, माजी में भी गलत था, इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है और जो अब इसका गलत इस्तेमाल करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। सरकारी अफसरान के पास मौजूद सिक्योरिटी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला की सरबराही की कमेटी केस टू केस की बुनियाद और दरपेश संगीन ख़तरे की नौयत को देखते हुए सिक्योरिटी गाड़ियों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से मुतल्लिक इजाज़त देने का फ़ैसला करेगी कि खुदा न खास्ता किसी पर्सन ए को कोई थ्रेट है किसी किस्म का भी या कोई और सिक्योरिटी हैज़र्ड है, तो इनकी कमेटी फ़ैसला करेगी कि भाई इनको ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन चाहिए। काबीना का कोई रुकन, अवामी नुमाइंदा या सरकारी अफसर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। सफ़र और क़याम तआम के अखराजात में कमी के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है किसी बैरूनी मुल्क में या मुल्क के अंदर, कोई कराची से इस्लामाबाद, और ऐसी कोई गुफ्तगू या ऐसा कोई मौजू है जिससे कोई सिक्योरिटी हैज़र्ड नहीं है, कोई राज की बात, कोई अफशा होने का कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पर हम जूम कॉन्फ्रेंस को हम फ़रोग़ देंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि सफ़री अखराजात और क़याम के अखराजात में कमी लाई जा सके। वफाकी हुकूमत के अंदर कोई भी नया शोबा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा 2 साल तक कोई नया इंतज़ामी यूनिट डिवीज़न, ज़िला, सब डिवीज़न या तहसील की सतह पर नहीं बनाया जाएगा। सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से मुतल्लिक तजवीज़, सिंगल ट्रेजरी अकाउंट कायम किया जाएगा जिस पर वज़ारत ख़ज़ाना ने काम का आगाज़ कर दिया है। इस पर फौरी अमल दरामद होगा। अभी अगर आपको कुछ सवाल होगा तो वज़ीर ख़ज़ाना इसके ऊपर आपको बता देंगे। नहीं, अभी मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। ये 7 है, 7:30 बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है और कम तवानाई से चलने वाले बरकी आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमने पिछले 2 महीनों में बड़ी अरक रेज़ी के साथ इसके ऊपर फैसले कर लिए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद जारी है। फौरी तौर पर यह फ़ैसला किया गया है और इसको फौरी तौर पर हम इसको अमली जामा पहना रहे हैं कल से ही कि सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को 1 से ज़ायद प्लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। इससे पहले माजी करीब में पॉलिसी 2-2, 3-3, 4 मिलते थे, 1 प्लॉट होगा। वज़ीर कानून की सरबराही में, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वफाक में भी और सूबों में भी अंग्रेज़ के दौर के सरकारी घर हैं जहाँ पर पुलिस अफसर रहते हैं, जहाँ पर सरकारी अफसरान रहते हैं, जहाँ पर वज़रा रहते हैं और वो यानी एक कई एकड़ों पर वो मुश्तमिल वो घर हैं जो कि बड़े शाहाना ठाट बाट से आज भी वहाँ पर उनको ज़ेर इस्तेमाल वो घर हैं। और उसके नतीजे में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक छत नसीब नहीं है और वो आज भी खुदा की ज़मीन और आसमान, खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देती है। और दूसरी तरफ अशराफिया बड़े बड़े घरों और इन सरकारी घरों में बात कर रहा हूँ कि कई एकड़ पर मुहित वो घर हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही है ज़्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा वो तमाम सरकारी घर जहाँ पर अपना सरकारी अफसर, पुलिस अफसरान या दूसरे अफसरान या वज़रा रहते हैं, तजवीज़ ये है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो कि एक पूरा एक प्लान कैबिनेट के पास लेके आएगी कि हम टाउन हाउसेस बनाएं उनके लिए
और जहाँ पर अच्छे घर हों, उनकी शान शान वहाँ पर रहें, तमाम सहूलतें हों। और ये जो ज़मीनें जो अब शहरों के वस्त में आ चुकी हैं, उन ज़मीनों को शफाफ तरीके से बेचकर अरबों नहीं खरबों इस कौम को जो बेकारीपन है, उस जो कशकोल को बहुत बड़ा ज़ोफ़ पहुँचे, वो ये हम अगर पाकिस्तान के अवाम के लिए ये हम वसाइल जमा कर सकें इस तरीके के ज़रिए, तो इसके लिए कमेटी वज़ीर ख़जाना जो लॉ हैं, कानून, उनकी ये कमेटी बना दी गई और वो काबीना में अपना प्लान लेके आएंगे। खाने के मौक़ों पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। और अलावा जी खाने के अलावा अगर कोई मीटिंग है, चाहे वो काबीना की मीटिंग है, और ये इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, एक बहुत संजीदा बात है। पंजाब में मैं 10 साल ये काम कर चुका हूँ और ये उसको आज वक्त की ज़रूरत है। और वक्त की ज़रूरत ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अपने दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि A1 डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, काबीना में। और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ़ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे, जो कि मैंने 10 साल इसको पंजाब में किया और कोई वज़न कम नहीं हुआ और कोई अपना खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश नहीं आई। गैर मुल्की मेहमानों के लिए ये पाबंदी लागू नहीं होगी, उनको हम, लेकिन वहाँ पर भी हम एहतियात से काम लेंगे। लेकिन गैर मुल्की मेहमान हैं, कोई लेविश नहीं होगा, एक सादा तरीके से हम ये करेंगे। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। छोटा जी, मेहरबानी, शुक्रिया बहुत। इन अहम इक़दामात पर फौरी अमल दरामद किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट 23-24 की तैयारी के वक्त कुछ मज़ीद इजाफ़ी इक़दामात किए जाएंगे। ये इक़दामात ख़ास तौर पर इस्लाहात, ग्रांट्स और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ में खसारों में कमी लाने से मुतल्लिक़ हैं। मेरी और काबीना की जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दर्जा बदर्जा अदालतें और चारों सूबाई वज़रा आला से भी पुरज़ोर तौर पर यह दरख्वास्त होगी कि अपने इदारों और हुकूमत में इसी नौइयत के फ़ैसले वो बुरकार लेके आएँ। ये इक़दामात वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और ये बचत चाहे वो एक पाई क्यों ना हो, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम का हक़ है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितनी हम काविश करेंगे वो कम होगी और इससे न सिर्फ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में एक पैगाम जाएगा करोड़ों आवाम के लिए जो आज भी एक वक्त की रोटी पर गुजारा करते हैं, जिनके बच्चों के लिए उनकी अपने बजट में ये फ़ैसला करना होता है कि इस बजट में बच्चों की किताबें लेके आएँ या ईद शबरात पर उनके नए जूते लेके आएँ या बीमार माँ या बहन के लिए दवाई लेके आएँ। मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये एक भाईचारे का और एक अख़ुवत का और इशार और कुर्बानी का ये इससे बेहतर पैगाम नहीं हो सकता। अगर हम इसके ऊपर मनोवन और दिलो जान से अमल पैरा हो गए तो फिर यकीनन जो यहाँ पर बात हुई थी कि अशराफिया और वो साहिब हैसियत लोग जिनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं, उनसे फिर हम गुजारिश करेंगे और उनसे भी हम इंशाअल्लाह ये कहेंगे कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। आखिरी दो बातें, जो एनर्जी कंजर्वेशन प्लान जो हमने बनाया था उसके ऊपर अभी खातर खा अमल नहीं हुआ। आज से जब उन हुकूमतों को ख़ुद वफाक में और सूबों में हम ये पैगाम देंगे कि अगर इसके ऊपर अब अमल मज़ीद में ताख़ीर हुई तो हम फिर बाकायदा शाम को फिर जो 8:30 बजे का टाइम है उसके बाद हम फिर
وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس سے ان کی اپنا ان مارکیٹس کی اور ان کے جو بڑے مالز ہیں ان کی بجلی ہم کاٹ دیں گے. جس طرح ایک زمانے میں جب شادی ہالوں میں 10 بج جاتے تھے تو 9:45 بجے وہ اپنی بتیاں خود وہ آف کر جاتے تھے. توشہ خانہ کا بھی آج فیصلہ ہوا ہے اور کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. جس طرح یہ فیصلے سارے اجتماعی فیصلے، یہ بھی اجتماعی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کے بعد صرف یعنی $300 کا $300 جو کہ آج کے $270 اگر ضرب دیں تو 8,000 روپے، 8,000 روپے کا تحفہ وہ رکھ سکتے ہیں باقاعدہ اس کو ڈکلیئر کر کے. اس سے اوپر جو تحفہ ہوگا وہ کابینہ کے تمام 80,000. میں معافی چاہتا ہوں جی، شکریہ. آپ ہم سب سے حساب میں آپ آگے ہیں بالکل. تو تھینک یو. 80,000 روپے میں مشکور ہوں. تو 80,000 روپے کا جو تحفہ ہے وہ رکھ سکیں گے باقاعدہ قانون پر عمل کرتے ہوئے. اس سے اوپر کا جو تحفہ ہے وہ جمع ہو جائے گا اور وہ پاس ہم نہیں رکھ سکیں گے مجھ سمیت کابینہ، پوری کابینہ. یہ آج کے فیصلے ہیں. اور جو جی مہربانی. اور توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم قوم کے سامنے اس کو پبلک کر رہے ہیں تاکہ قوم خود وہ دیکھ لے گی. وہ اپنے جو ان کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو تحائف آئے ان کی کیا تفصیل ہے، وہ ساری کی ساری اپنا طول و عرض میں کراچی سے لے کے پشاور تک ہر آدمی، ہر ادارہ، ہر فرد، ہر اتھارٹی اس کو دیکھنے کی مجاز ہوگی. اس کو ہم آپ باری باری سوال کریں. جی میں آپ کو جی سب ایوان صدر کی بھی جی کہ کیا خالی وزیر اعظم نے کٹہرے میں ٹھہرنا ہے، ایوان صدر نہیں. وہ سب کے سب تحفے وہ اپنا جو ہیں اس کا ریکارڈ جاری کر دیا جائے گا. وہ پبلک ریکارڈ ہے، سب کو اس کا حق ہے کہ اس کو وہ جانے اور پھر پوچھ سکے. میں ان معروضات کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب اگر سوالات ہیں میری گزارش اس کو رپیٹ نہ کیا جائے تو مریم اورنگزیب صاحبہ اس کو کنڈکٹ کریں گی. تو جی شکریہ. پرائم منسٹر صاحب. ثناء اللہ ڈان. ڈان کا ڈیو ہے. جی پرائم منسٹر صاحب، ڈار صاحب کی کیونکہ یہ سمری تھی، ان کے متعلق سوال ہے. ایک تو یہ جو آسٹیرٹی میئر ہے ڈار صاحب، کتنی اس سے بچت ہوگی اماؤنٹ میں بتا دیں. اور پرائم منسٹر صاحب یہ بتا دیں کل جو چیئرمین نیب مستعفی ہوئے آفتاب ثناء اللہ نام ہے سر ادھر، اچھا جی کل آفتاب سلطان صاحب کی طرف سے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، خاص کر کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، بڑے سیریس قسم کے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان پر دباؤ تھا کسی کیسوں کے حوالے سے. تو یہ پلیز کلیریفائی کر دیں. ان کے استعفے میں تو ذکر نہیں تھا. اور دوسرا اس اسٹیرٹی سے بچت کتنی ہوگی؟ جی دوسرا سوال انشاءاللہ جب اس کی نشست کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کا جواب آئے گا. تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں کوئی اپنا اس کو ڈائیلوٹ کیا جائے. اس میں جو وزیر خزانہ نے جو بچت جو کی ہے بتائی ہے اینولائزڈ سالانہ جو ہوگی وہ 200 ارب روپے کی بچت ہوگی. جی نیکسٹ. اظہر فاروق صاحب. اظہر فاروق جی. وزیر اعظم صاحب آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ نیا انتظامی یونٹ نہیں بنے گا، نئے ڈویژن یا ڈسٹرکٹ نہیں بنے گے. ابھی حال ہی میں 5 ڈسٹرکٹس اناؤنس ہوئی ہیں، ایک ڈویژن. کیا ان کو بھی ختم کرنے کا کوئی حکومت کا پروگرام تو نہیں؟ یہ ہم نے وفاق کی حد تک اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے. جو وفاق کی جو ہے اپنا جورسڈکشن میں نے آپ نے دیکھا کہ میں نے اینڈ میں کہا کہ ہم صوبوں کو بھی کہیں گے کہ یہ خالی یہ نہیں، تمام سفارشات کے اوپر مہربانی کر کے وہ عمل کریں. جی بہزاد سلیمی صاحب. اور یہ جو بچت ہے 200 ارب روپے کی وفاق کی ہے. صوبے جب اس میں حصہ ڈالیں گے تو اس کے علاوہ ہوگا. جناب وزیر اعظم، بہزاد سلیمی، نیوز 1 ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ایک تو توشہ خانے کے حوالے سے کہا
क्या ये सिर्फ सिविलियन जो क़यादत है उसी पर इसका इतलाक़ होगा, या जो एक बिल कौमी असम्बली में सेनेट में पेश किया गया था उसमें तो ये था कि तमाम जितने भी सिविल अस्करी जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर भी पाबंदी होगी तोशाखाना के गिफ्ट्स के हवाले से, और इसी तरह आला जुडिशरी में भी होगी। एक तो इसकी वजाहत कर दें कि ये जो पाबंदी है गिफ्ट्स लेने की, क्या ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म, सदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी तक है, और दूसरा ये कि जो अफसरशाही का निज़ाम है इसको कैसे ख़त्म करेंगे। इस्लामाबाद क्लब आप देखते हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह की, जो यहाँ जो हम देखते हैं कि वो जाके अफसरशाही जो है याशियाँ करती है, तो आम आदमी तो वो सारी सूरत हाल में देखता है कि कोई तब्दीली नहीं है रवैये में। तो इस सारी सूरत हाल में इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कब फैसला लेंगे? मेरा ख्याल है कि आज के जो फैसले हैं ये एक दूररस इसके नताइज इंशाल्लाह होंगे, ऑस्टेरिटी के हवाले से, किफ़ायत शहरी के हवाले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दूसरी बात, तोशाखाना में तहफ़ आते हैं या दिए जाते हैं जो पॉलिटिशियंस, अपना सरकारी एहलकार, अफसरान, वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म और जो सदर पाकिस्तान है या गवर्नर्स, अदलिया के जहाँ तक मुझे इल्म है वो तोहफ़े यहाँ नहीं आते। अगर मिलते हैं, अगर हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनके जो तोहफ़े मिलते हैं वो इस तोशाखाने में नहीं आते। लिहाजा तोशाखाना में जो तहफ़ आते हैं, जो उसकी तारीख़ है, मैंने उसके हवाले से ऐलान किया। जी प्रोफेसर अयाज अकबर यूसुफ से जियो से, एक तो आपने तोशाखाना के $300 की आपने बताया, तोशाखाना है जी जी वही एक $300 की बात आपने की, तो उसकी जो वैल्यू है, माजी में भी यही हुआ कि ₹1 की चीज़ को उसकी वैल्यू टके की लगाई और उसको डिक्लेयर करके घर ले जाया गया। उसकी वैल्यूएशन कौन करेगा? कि आपने कहा कि $300 की चीज़ आप रख सकते हैं, तो वैल्यूएशन इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपको शायद हो सकता है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इतराज़ भी हो कि अब लोग मारे फिरे आटे के लिए। आटे का क्या ऐसा बहरान है इस मुल्क के अंदर कि आज भी इस सिचुएशन के, आप देख रहे IMF तो एक अलग मसला, आटा तो हमारी लोकल प्रोडक्शन है, उसके लिए उसकी खपत को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने दो सवाल किए हैं। पहला तोशाखाना के हवाले से, तो इसकी बाकायदा थर्ड पार्टी यानी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनकी कीमतों की वो अपना डिटर्मिनेशन करेगी, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। लिहाजा अगर थर्ड पार्टी इसमें है तो फिर मेरा ख्याल है कि सबको इसके ऊपर मुतमिन हो जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी जो वैल्यूएशन है वो हम कौम के सामने रखेंगे। दूसरी बात आपने की आटे की, गंदम की। आज भी मैं आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम के, अगर गंदम और आटे में फ़र्क है, गंदम से आटा बनता है। अगर गंदम के स्टॉक्स में अगर कमी खुदा न खास्ता होती तो मैं आज कटहरे में खड़ा होता, आप मुझे कटहरे में खड़े कर सकते थे। आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से पास्को जो फेडरल इदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर खर्च करके गंदम मंगाई है और कहीं किसी सूबे में गंदम की कमी नहीं है। आटा जो बुनियादी तौर पर सूबों का काम है, ये अपना वफाक की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट से मैंने बाकायदा मीटिंग्स की हैं और उनसे कहा कि ये जो उनके यहाँ ये जो कोई कैफियत है और जो लाइनें लगी हैं, क्योंकि उसमें कमी आई है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, वो ख़त्म होनी चाहिए उसमें कोई। और अब देखा कि पंजाब की मिलों ने हड़ताल पे आए, क्यों आए? जब उनको सख्ती की गई, यानी आप जानते हैं कि ऐसी मिलों की कोई कमी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर उसके गवाह हूँ कि जो कागज़ में हैं और बरसात में मेंढक की तरह वो अपना बाहर आ जाते हैं ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग करें। अब ये सुबह इसके ऊपर लगे हुए हैं। मैं फिर मीटिंग रमज़ान शरीफ की भी रख रहा हूँ, इसके ऊपर भी जो वफाक की इस हद तक ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों को वो सेंसिटाइज़ करें, मैं इंशाल्लाह अदा करूँगा और उससे भी आगे हम भाइयों की तरह मिल के हम करेंगे। तो गंदम की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह। अभी चंद दिन पहले हमें बाद सूबे ने कहा हमें गंदम मज़ीद चाहिए, हमने उनको दे दी क्योंकि हमारे स्टॉक्स में गंदम मौजूद है जो कि अरबों डॉलर से मंगवाई गई है। तो ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब आप
सूबों में जब बात हो तो ये सवाल वहाँ पर ज़रूर किया कीजिए। चौधरी साहब जी। आपने आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपने तो अपनी तरफ से तनख्वाहें ना लेने का भी ऐलान कर दिया, दीगर मराद भी छोड़ दी, लेकिन बहुत से सरकारी महकमे हैं वफाकी जिनके मुलाजमीन को, जो बड़े मुलाजमीन हैं, उनको 300, 400 यूनिट जो है बिजली के फ्री मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, उनको उसकी सीलिंग है। तो उस वाले से भी कोई फैसला किया है कि उसमें कमी की जाए, बंद किया जाए, ताकि वो भी हिस्सा डालें इस ऑस्टेरिटी की मुहिम में? आपने देखा कि जो 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 अलाउंसेस हैं, जो मेडिकल अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, या वो तो इंटैक्ट हैं। उसके अलावा जो ऐसे अलाउंसेस जो कि इस ज़माने में नहीं आते थे, उनके ऊपर आपने देखा कि उसमें कटौती का कहा गया है ताकि अखराजात कम हों। लेकिन देखें, गरीब आदमी अब ग्रेड 18 का जो अफसर है या 19 का अफसर है, उसकी आज जो तनख्वाह की जो वैल्यू है वो क्या रह गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस सख्ती के दौर में हमें उनको मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए। हमने जो आज का जो ये प्लान बनाया है, अगर ये कामयाबी से हम आगे ले गए तो फिर इंशाअल्लाह जो अशराफिया उनके ऊपर हम मज़ीद बोझ डालेंगे इंशाअल्लाह। साहब, हमेशा से एक इशू रहा है अमल दरामद का। आपने तवानाई बचत की जो स्कीमें बनाई उस पर अमल नहीं हुआ, आज फिर आपने एक अनाउंसमेंट की, इसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी दोबारा से बनेगी। और सबसे जो मेन इशू है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मार्केट में महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम ऐसे फील करती है जैसे वो लवारस हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, चीज़ों पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं है, ना वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस है। इस हवाले से भी आज के इस काबीना में कोई फैसला हुआ? ये जो सवाल पहले हो गए उसी तरह का ये सवाल नोहित का सवाल है। मैं उसको ये जवाब दूंगा कि हम इंशाअल्लाह जो आज फैसले किए हैं उसके ऊपर हम इसके ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होंगे इंशाअल्लाह। मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मेरे काबीना के जो और पार्टीज़ के जो यहाँ पर बैठे हैं ज़ोमा, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। सूबों को हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब वहाँ पर अमल होगा और कमी होगी तो आप ये सवाल ज़रूर उठाइएगा। जी जावेद। सर, जैसा कि आपने ऑस्टेरिटी मेयर्स के बारे में बताया और एक अच्छा इकदाम है जिसमें आपने जुडिशरी से भी कहा कि वो भी अपने उसमें अप्लाई करें इसे, तो सर एक क्लास ऐसी भी है जो टोल टैक्स नहीं देती है और वो प्रिविलेज क्लास है, क्या उनके लिए भी कोई ऐसे इकदाम तजवीज़ करेंगे आप? कौन सी क्लास? ये ये टोल टैक्स कौन जो क्लास नहीं देती, मैं इसको एग्जामिन कर लेता हूँ, जो इसको पता कर लेता हूँ। शुक्रिया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं इसका पता कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन सब देते हैं, टोल टैक्स देते हैं। सरकारी जो सरकार होल्डर की गाड़ियाँ जो, अच्छा, कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे अंदाज में तय कर लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि फाइटिंग करप्शन के ऊपर आपकी पीडीएम का क्या बयानिया है? आज भी स्विस, फ्रांस और ब्रिटिश बैंकों में अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे पड़े हुए हैं और उसमें पाकिस्तान की पास की भी इशराफिया है, मौजूदा इशराफिया भी है। तो कोई ऐसा माजी में इस तरह कई प्रपोजल ज़ेरे गौर आई कि स्विस, ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन बैंकों से अगर ये 5% भी डॉलर्स वापस आ जाएं तो आपको IMF के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया है, तो दफ्तर खारजा आपकी डिप्लोमेसी को आगे परसू करता है, आपकी खारजा पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको आगे ये परसू करता है। तो उसमें आप ये बताएं, बहुत सारे फॉरेन मिशन बंद हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक स्टाफ को आप कम कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या मुतासर नहीं होंगे? थैंक यू मिस्टर प्राइम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपका किस चैनल से ताल्लुक है? जी ठीक। ये जो पहला सवाल है आपका बड़ा पर्टिनेंट है। वैसे तो सारे ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान के जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। अलबत्ता ये ज़रूर है, देखें, अलबत्ता ये ज़रूर है
کہ یہ نظام ہے قدرت کا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اب وہ جو ووٹن کرکٹ کلب میں ایک رفائی ادارے کے لیے پیسہ جمع کیا گیا تھا، وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال لیا. دیکھیے کہ جو شخص یہ باتیں دن رات کرتا تھا ایک ناخدا بن کے کہ میں 300 ارب ڈالر لے کے آؤں گا اور 90 دن میں لے کے آؤں گا، کرپشن ختم کر دوں گا، وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. صرف یہی نہیں، وہ جو گھڑی تھی میں آپ کو آج مزید اس میں اضافہ کر میں بات پرانی دہرا نہیں رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ وہ جو گھڑی تھی جو خانہ کعبہ کے ماڈل کی، اس کو جس بے دردی سے اس کو بیچا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں پاکستانیوں کی اس نے توہین کی. خالی اس حوالے سے نہیں کہ ایک دھائی برادر ملک کے سربراہ نے وہ گھڑی بڑے شوق سے دی تھی، وہ اس وزیر اعظم کو نہیں دی تھی، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تعظیم عزت کی خاطر دی گئی تھی. اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا. اگر وہ خانہ کعبہ کا ماڈل نہ بھی ہوتا تب بھی اس کے اوپر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ بازار میں بیچ دے سر عام اور پھر قوم کو دھوکہ دے. خانہ کعبہ کے ماڈل کے بعد تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک مسلمان کے ایک ملی جذبے کے علاوہ ایک دینی بھی ہماری سوچ ہے کہ بھائی یہ تو ایک متبرک دنیا کے متبرک ترین مقام کی اس کے اوپر اس کی عکاسی کی گئی تھی، اس کو تو بیچنا تو تصور میں بھی لایا جا سکتا. اب خالی یہی جرم نہیں کیا، وہ جو رسید جو دی گئی تھی کہ یہ میں نے 5 کروڑ میں بیچی تھی، کتنے میں 5 کروڑ میں کہ 5 کروڑ میں وہ جعلی رسید تھی. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ وقت کا وزیر اعظم جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. ایک تو خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچی گئی اور دوسری جعلی رسید دی گئی، وہ اس سے بھی بڑا جرم. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ توپوں کا رخ اب آپ ادھر موڑ دیں. حنیف خالد صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی ہے نہیں، بتا دیں. فورن آفس والا بتا دیں. فورن آفس کے حوالے سے کوئی کٹ نہیں ہے. جی بالکل. وہ جو اسٹینڈرڈ کٹ ہے 15%، وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ ادر دین سیلری اینڈ الاؤنسز، کوئی کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ آپ کو کس نے فیڈ کر دی ہے؟ جناب وزیر اعظم، نہیں، یہ اسپیکولیشن ہے. اچھا جی، پرائم منسٹر صاحب، آپ نے 2022 کے اواخر میں گوادر کا وزٹ کیا. وہاں آپ کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ IMF ہم سے ناک رگڑوا رہا ہے. 5 فروری کو آپ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ IMF والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سبسڈی کا ایک فائل کا ایک ورک الٹا کے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ IMF نے یہ رقڑا آپ کے الفاظ میں پاکستان کو کیوں دیا ہے اور دیا جا رہا ہے، جس کا اثر غریب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو سوال یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ اس ہفتے ہوگا یا یہ بھی اگلے ہفتے چلا جائے گا یا اس سے اگلے ہفتے؟ گوادر میں جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ سن لیں 8 سال سے مؤخر جو اپنا اور بالکل وہ ڈسٹ بن میں وہ منصوبہ ڈال دیا گیا تھا گوادر کے عوام کے لیے بجلی کا، وہ کل بجلی وہاں پر آ چکی ہے اور گوادر شہر میں اب بجلی کی کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جہاں پر آپ نے کہتے میں نے کھڑے ہو کے یہ باتیں کی IMF کو، اس کے باوجود بھی بجلی وہاں پر آ گئی ہے اور دن رات ہم نے محنت کی اس حکومت. نمبر 1. نمبر 2، گوادر پورٹ جو ٹھپ ہو چکی تھی، آج وہاں سے گندم اور فرٹیلائزر کی ترسیل وہاں سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ ٹھپ ہو چکی تھی. اور گوادر کے عوام کا جو ان کو کہ وہاں پر مزدوری، کوئی اپنا ٹرانسپورٹ، کوئی وہاں پر جہازوں سے سامان لادنا ٹرکوں کے اوپر، یہ ساری چیزیں اب گوادر میں
अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शुरुआत हो चुकी हैं। नंबर 3, आपको पता है गवादर पोर्ट के ऊपर इतनी बेरुखी की गई माजी की हुकूमत में, उसकी ड्रेजिंग नहीं हुई, जिससे कि वहाँ पर जो बड़े जहाज़ थे आना वो नहीं आ सकते थे, उसकी जो डेप्थ थी वो कम हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ड्रेजिंग शुरू है ताकि बड़े जहाज़ वहाँ पर आए जा सकें। तो IMF का अपना एक है, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी मकदूर में है, हमारी हिम्मत है, वो इंशाल्लाह हम ये काम करते रहेंगे। जी नेक्स्ट सवाल। शाकिर जी, शाकिर। शाकिर बासी सर, नियो टेलीविजन से। वज़ीर साहब, आपने जो फरमाया कि एक्सट्राऑर्डिनरी मुहिम में जो कट लगेगा, पाकिस्तान के दुनिया भर में जो फॉरेन मिशन फैले हैं, क्या ये उन पे भी लागू होगा? और दूसरा, आपके वज़ीर जो खारजा हैं वो तो पाकिस्तान के दौरे पे कम ही तशरीफ़ लाते हैं, तो ये जो आपने ये बैरूनी दौरों के हवाले से कहा है कि ये उनकी मशावरत से किया है, उनको भी बताया, या ये कट उन पे लागू नहीं होगा? ऑफिसर्स का लिखा बताते हैं, ये जो आज मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हमारी हुकूमत, पूरी हुकूमत शामिल है इसमें भाई। ये अगली बात आप बता दें। जो ऑफिसर्स के ऊपर ऑब्लिगेटरी जो है सिर्फ उस पर वो जा सकेंगे। ये जो तफसील वज़ीर आज़म साहब ने आपको शेयर की है, इसके ऊपर ना तो कोई फॉरेन मिशन में कोई कट है, ना ही उसके कोई अखराजात में कोई कमी की जा रही है। तो वो मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन है, कुछ न्यूज़ छपी हैं जो कि उसके बरक्स कुछ चेंजेस हैं जो आज आपको तफसील वज़ीर आज़म ने शेयर की, जो काबीना ने मंजूर की है। तो ये तो वैसे एजेंडे में भी नहीं था। मुझे नहीं समझ आई कि वो चीज़ें कैसे या कैसे परसीव की गई हैं, वो है ही नहीं है कोई ऐसी बात। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये बात बताई कि, और ये बात इसको अपना शऊरी तौर पर आगे फैलाने में कोई हर्ज नहीं है। ये अच्छी बात है, कौम को उसको पता चलना चाहिए कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हम उन्हीं की पार्टी के एक मिनिस्टर ने आज बताया काबीना में कि फॉरेन मिनिस्टर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। जी PM साहब, जावेद बलोच, ब्यूरो चीफ, नियो टीवी से। सर, IMF के साथ आप एग्रीमेंट फाइनल करने जा रहे हैं और आपने बताया कि इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा कौम को, जिसके लिए तैयार भी है। खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, जो एक मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। मजबूरी है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। सर, आपने जो भी बताया था कि ये एग्रीमेंट आपने नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट नहीं किया, पिछली गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये एग्रीमेंट करके गई थी। तो क्या जिस तरह आप तोशा खाना जो है वो उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो इज इट पॉसिबल कि आप IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है लास्ट गवर्नमेंट का, वो बताएं कौम को कि ये एग्रीमेंट था क्या और उसकी जो है वो तफसीलात क्या थी। सर, नंबर 2, एक और इमाम पाया जा रहा है मुल्क में, और इस पर बातें भी हो रही हैं कि पंजाब और KP के इलेक्शन तो कब होंगे वो पता नहीं है, लेकिन क्या जो आम इंतखाबात हैं मुल्क में, कौमी असम्बली जब तहरीर होगी, तो क्या आप समझते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे? देखिए कि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके नतीजे में जो अपना वफाक ने जो इलेक्शन कमीशन में अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सूबा पंजाब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सूबा KP ने मौक़िफ़ पेश किया है, वो तो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो अब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन जो कंसर्न जो इदारे हैं उन्होंने करना है। मैं आइन का पाबंद हूँ, जो मुझे ये इदारे कहेंगे, आइनी इदारे, आई विल गो अलॉन्ग। जी मैं नहीं मरीम बेटा, मैंने IMF को बता रहे जी, मैं आपको IMF के हवाले से आपने फरमाया कि क्या वो जो मुआहदा होगा, एक तो पुराना, ये 1 जनवरी 1999 को पहली दफ़ा ये मुआहदा मैंने वेबसाइट पर डलवाया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो साथी पुराने उनको याद होगा। अब वो अगली हुकूमतों ने क्या किया है वो ऑब्वियसली हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इस मुआहदे को वेबसाइट पे डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे 2019 का भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे, आप खुद ताकि कंपेयर करें, आपको पता हो कि जी ये सॉवरन मुआहदा इस हुकूमत ने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टीज, पोलिटिकल पार्टीज के साथ, ये हुकूमतों के साथ नहीं होता, ये मुआहदे स्टेट के होते हैं और सॉवरन कमिटमेंट्स होती हैं, इसीलिए हमने उसको पूरी तरह, तो हम बिल्कुल शेयर करेंगे जी आपके साथ, और जो 2019 का वो भी शेयर करेंगे। मैंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी स्पीकर साहब को मैंने अर्ज किया था कि ये मुआहदा MEFP 2019 में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मेंबर्स में भी तस्लीम करें ताकि वो पढ़ें कि क्या था।
اور हमारा जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपका एक छोटा सा सवाल था पावर के हवाले से, उसका जो गनीत खालिद साहब जो वजह है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि आप 3000 अरब की बिजली बना रहे हैं, IMF को छोड़ें, आप सिर्फ 1550 अरब उसके बदले में रिकवर करते हैं और 1450 अरब का उसमें होल है। हम एज ए कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मुल्क को इतना बड़ा यानी डेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता। 300 यूनिट तक के करीबन 570 अरब जो हैं वो बजट में रखे जाते हैं कि जी इनको हमने बिजली सस्ती देनी है, इसकी हुकूमत पे करेगी। जो बाकी है, जो चोरी है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो आपके बिल पे नहीं होते, वो जो डिफरेंस है ना करीबन 870 का, वो प्रॉब्लम है असल में। तो जो आपने ये मेयर्स देखे ना, ये तो सिर्फ बड़े मामूली हैं, बाकी हमने वो ठीक कर रहे हैं और हम पूरी स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे अपने इंटरेस्ट में कि हम इस ब्रीडिंग को बंद करें, जैसे एसओईस कहते हैं कि जी उसके नुकसान बंद करें, इसी तरह इसको भी बंद करें। इस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। जी अवैस कियानी साहब। शुक्रिया पीएम साहब। दो चीज़ें हैं बहुत ही अहमियत की हैं। आप अपना तारीफ फरमा दें। सर अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। थैंक यू सर। दो चीज़ें बहुत ही अहमियत तलब है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा रिस्पॉन्स करें। सबसे पहली बात ये है कि एक ऑडियो लीक्स आती है, उसमें जज साहब जो हैं मौजूद हैं और उसके साथ ऑडियो लीक्स आती है जिसमें ज़िम्मेदार ओहदों पर जो बैठे हुए हैं जजेस हजरात, उनके हवाले से बात चीज़ आती है। उसके बाद मुतसब जो रवैया है वो भी चीज़ देखने में आ रही है। नून लीग स्पेशली तौर पर हुकूमत, क्या आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें ताकि वो जो नून लीग स्पेसिफिक जो केसेस हैं उनसे वो साइड पे हों? पहली बात। दूसरा ये बताएं कि APC कॉल होनी थी सर, बहुत अहमियत की आमिल थी, वो डिले है। डार साहब 28 फरवरी को क्या पेट्रोल दोबारा से महंगा होगा? थैंक यू वेरी मच। जी जो पहला आपका सवाल है, देखिए कि हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब अदालत उस्मा, अदालत आलिया और दर्जा बदर्जा तमाम हम अदालतों का हम एहतराम करते हैं। ये हमारा आईनी हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे? और इससे न सिर्फ इंसाफ और अदल का जो तवाज़न है वो मुतासर होगा या हो रहा है, उससे बहुत ख़राबियाँ पैदा होंगी। अब मुझे बताएं, आप लेके चले गए, आज का मौजू था बिल्कुल खालिस अपना कफ़ायत जारी का, लेकिन चूँकि अब हमने बात कर दी है, मुझे बताएं आप कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा से पनामा से अकामा में उनको सज़ा दिलवा दी गई। अब कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, हर चीज़ सामने रोज़े रोशनी तरह आया हो गई है। बाज़ ज़िम्मेदार लोगों ने तो अब इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं। अब इसमें तो इमरान नियाज़ी का जो घर है जहाँ पर ये 300 कनाल का, जो कि बिल्कुल उसकी ना परमिशन थी ना उसकी बाद में ली गई परमिशन थी, बाद में ली गई, उसको उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो जनाब उसको पता नहीं किस तरीके से उसको रेगुलर कर दिया और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए। ये है वो यानी एक इंतहाई यानी गैर मुनसफाना और नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। इसीलिए हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। वो इंशाल्लाह होगी, आप फिक्र ना करें। साले जफर साहब। अवैध साहब, आपको भी पता है कि ये एक सिस्टम है, ओगरा जिम्मेदार है, वो सब कैलकुलेशन करता है कि फ्लैट्स 15 दिन में उसकी एवरेज क्या थी, डॉलर जो और रुपये का जो रेट है वो एवरेज क्या थी। एक सिस्टम है, फार्मूला है। हम तो यही कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जब वो बना के लाते हैं तो फिर हम कई घंटे झगड़ा करते हैं ताकि कम से कम पिछला भी जो था जो वर्किंग थी वो 48 रुपये थी पेट्रोल पे और 36 रुपये थी डीजल पे।
हमें 3 घंटे लगे, अब बस एक एक पैसे का हिसाब किया और जाके ये 22 रुपये और 18 रुपये हुआ। तो हम पूरी जिम्मेदारी जो है अपनी उसको निभाएंगे और अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। मेरे पास कोई तफसील नहीं है, यकीन करें। साले जफर साहब। Prime Minister, let me in the outset sympathize with your ministers जिनके आपने सारे privileges जो हैं वो छीन लिए हैं। और मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने ये ऑस्टेरिटी और कफ़ायत शारी की भी बातें की हैं, लेकिन रिसोर्सेज का कुछ हैमरेज उन तहरीकों की वजह से हो रहा है जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी वजह से मुल्की वसाइल का ज़िया हो रहा है। और सवाल ये है स्पेसिफिक इसहाक डार साहब से जो आपके बराबर में बैठे हैं, ये बताएं कि क्या सालाना बराबर में बैठे, सामने बैठे हैं, चले आपके बराबर में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ सालाना तरक्याती बजट पे तो कोई कटौती नहीं लगा रहे, और जो गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पिस रहा है, तकलीफ में है, IMF के इस प्रोग्राम के बाद आपके पास कोई डेडलाइन है कि कब से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा? शुक्रिया। जो पहली बात आपने की कि मैं आप सिम्पथाइज कर रहे हैं, बड़े ही अदब से और आपसे मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि बाखुदा ये इनको इन तमाम साथियों ने और जो यहाँ पर मौजूद नहीं, पूरी काबीना ने बिल्कुल अपनी खुद दिल की गहराइयों से इन्होंने ये ऑफ़र पेशकश की है। आपको सिम्पथाइज नहीं करना चाहिए, इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनके जज्बा हुब्बुल वतनी को, इनकी यानी एक मिसाल को, सादगी की, कफ़ायतचारी की, इसार की, और मुल्क को और मुल्क की पूरी जो हमारी आबादी है तूल अर्ज़ में, उनमें एक जज्बा उभारने की मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। आप मेहरबानी करके ये एम्पथाइज ना करें, बल्कि मेरी गुजारिश है। जी मैं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी सवाल का जवाब इन्हें देना, मैं तो नहीं देना। जी देखिए, फिर मैं कहूँगा तो फिर पता नहीं, ये आपने लिखा है और काफ़ी हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक थी। किसी ने 600 अरब लिखा, किसी ने 650 लिखा, आप सारे बैठे हुए हैं, आपके अखबारों में छपे, आपके टीवी पे ये खबरें आ चुकी थी 31 जनवरी से पहले और उसके दरमियान। किसी ने 750 लिखा। ये मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूँ इससे ज़्यादा ही था एजेंडा। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि 10 दिन में मुआशी टीम ने जो हार्ड नेगोशिएशन की, वो 170 के ना सिर्फ टैक्सेस सिर्फ एग्री करवाया, बल्कि 40 अरब ये भी तय करवाया कि जो हमारे जो गरीब तरीन ख़ानदान है, हमारे बहन भाई, उनके जो हेड ऑफ फैमिलीज हैं, जो बेन इनकम सपोर्ट फंड के हम जो हेल्प करते हैं, 25% का इजाफा और 40 अरब उसके लिए मुख्तस करवाया। तो मेरा ख्याल है साले साहब ये तो शाबाश देना आप कम से कम। इंशाल्लाह ये मुल्क बहरानों से निकलेगा। मेरा आपको अल्लाह ताला के फज़ल मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, इंशाल्लाह ये बहरानों से मुल्क निकलेगा, अजीम बनेगा और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। जी से आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये बड़ा अच्छे इकदाम किए हैं, लेकिन आपकी हुकूमत पे एक तनकीद होती है कि 83 रुकनी काबीना है। अगर आप काबीना का साइज़ 20, 25, 30 पे ले आते तो अवाम के लिए बहुत बड़ा मैसेज आता और किसी को तनकीद करने का मौका ना मिलता। सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आज काबीना के ऊपर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और यकीन कीजिएगा जिस तरह ये फैसले काबीना के अरकान और ज़ुमा ने ख़ुद अपने बिल्कुल अपने मर्ज़ी से किए हैं और बड़े शौक़ से किए कि हमें ये फ़ैसले करने। इसी तरह काबीना में यानी साइज़ को कम करने को, हुजूम कम करने की भरपूर वहाँ पर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। हमने इसको सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए मौखर किया है। चूँकि अब आपने सवाल किया तो मैं जवाब रोक नहीं सकता था। आप इस बारे में भी अच्छी खबर सुनेंगे। मैं राजा बशारत साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से तारक साहब, वो 83 रुकनी कबीना या वो उसका रेफरेंस था खर्चे के हवाले से, तो वैसे मुफ्त हो गया, जीरो हो गया। अब आप यानी जो भी ये जो काबीना है उसका हुजूम बड़ा है, जो भी है वो तो बेचारी आज एक धेले के बगैर खदमत करेगी। इससे बड़ी और आपको क्या, आपको रियायत चाहिए और मुकम्मल तौर पर एक धेले के बगैर। जी आपने यहाँ पर जो बचत के हवाले से वज़ीर मामलात ख़ुसूसी और दूसरे बताया कि लग्जरी गाड़ियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिजली के यूनिट्स और मोबाइल वगैरह, वहाँ पर आपने एंड पे
چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور 4 جو آپ کے ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحب، ان سے درخواست کی ہے، لیکن سارے میں آپ نے ایک دفاعی ادارے کو بیچ میں سے چھوڑ دیا کہ دفاعی ادارے کے حوالے سے آپ نے قوم کو یہ نہیں بتایا کہ کیا وہ بھی لفظی گالیاں استعمال کریں گے یا کیا کریں گے؟ شکریہ. دیکھیے کہ میں نے عدالت عظمیٰ سے میں درخواست کر سکتا ہوں نا، اور یعنی یہی مروجہ طریقہ ہے. گو کہ گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے، لیکن یہ ایک ادارہ ہے جس نے انصاف دینا ہے، تو اس کو میں نے درخواست کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے حوالے سے یہی مناسب بات ہے، اور صوبوں کو میں نے کہا ہے. اب جو عسکری ادارے ہیں اس کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا. انہوں نے پازیٹیو ہمیں جواب دیا ہے کہ جو غیر جنگی اخراجات کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ایک پازیٹیو انہوں نے ہمیں دیا، جو آئے گا یا وہ خود ہی اس کا اعلان کریں گے. آخری بات، میں بہت ضروری 1-2 اعلانات، مریم ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں. میں کولیشن حکومت کے تمام زعماء کا، تمام وزراء کا، اور جو ایڈوائزرز ہیں اسپیشل، سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج والنٹیرلی رضاکارانہ طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ، اور یہ صرف سمبولک نہیں ہے، یہ ایک جو بوجھ ہے خرچے کا. دیکھیے لگژری گاڑیاں نہیں استعمال کریں گی، تنخواہ نہیں لیں گے، اور کوئی وہ نہیں لیں گے، الاؤنسز نہیں لیں گے. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو میں تمام زعماء کا، جناب آصف زرداری صاحب کا، جناب اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر صدیقی صاحب کا، میں جناب ہمارے جو خالد مکھی صاحب ہیں، میں ان کا، میں جناب ہمارے جو ANP کے ان کا، میں جو ہمارے ML ولی ہیں، میں جناب مینگل جو میرے بھائی ہیں، ان کے صدر جو ہمارے مینگل ہیں، ان کا میں اختر مینگل، ان کا میں شکر گزار ہوں. میں درجہ بدرجہ تمام پارٹیز کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج خوشدلی سے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا. نمبر 1. نمبر 2، صدر پاکستان آج فیصلہ کیا کابینہ نے کہ صدر پاکستان کو میں خط لکھوں گا کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے مکمل طور پر غیر آئینی حرکت کی ہے. صوبوں کے بارے میں ڈیٹ دینے کا ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، اور نہ صرف ابھی انہوں نے غیر آئینی حرکت کی ہے، جو آج سے 9 مہینے پہلے بھی انہوں نے اس غیر آئینی حرکت کا وہ حصہ تھے، جب ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے غیر آئینی طور پر امریکہ کا جو بہانہ بنا کر انہوں نے اسمبلی کو توڑا. صدر پاکستان اس میں شامل تھے. لہٰذا آج کابینہ نے مجھے کہا ہے کہ میں صدر پاکستان کو کابینہ کی طرف سے خط لکھوں اور پرزور اس کی مذمت کروں، ان سے اس کا میں یہ ان کو کہوں. نمبر 1. نمبر 2، اس میں بات سامنے آ گئی کہ عمران نیازی نے چند دن پہلے وائس امریکہ کو کہا کہ امریکہ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. 100% انہوں نے کہا کہ امریکہ کا رول نہیں ہے. تو پھر 9 مہینے جو بیانیہ جاری رہا اور پوری قوم کو اس ہیجانی کیفیت میں انہوں نے مبتلا کیے رکھا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ نے یہ کام نہیں کیا، اور امریکہ سے ہمارے تعلقات کو جو بگاڑا اور بری طرح بگاڑا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آج قوم کو اس کا جواب چاہیے. اس کے لیے جو بھی آئینی اور لیگل طریقے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بہت صدر پاکستان نے غیر آئینی حرکت کی، صدر پاکستان کو خط لکھوں گا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ایسا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. بنی گالہ میں گھر معلوم نہیں کیسے ریگولائز کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کفایت شعری مہم میں سالانہ 200 ارب کی بچت ہوگی، اور اس حوالے سے اہم اعلانات بھی کیے گئے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جو فیصلے کیے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. صوبوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جو شخص 300 ارب ڈالر لانے کی باتیں کرتا تھا وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. سابق وزیر اعظم نے گھڑی بیچ کر جعلی رسید کے ذریعے قوم کو دھوکہ دیا. ایسے ججز جن کا نون لیگ سے رویہ رہا ہے ان کے سامنے ہمارے کیسز نہ لگائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کے حوالے سے حکومت کی نئی پالیسی بھی سامنے آئی. اس کا اہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ آج کے بعد توشہ خانہ سے صرف
$300 مالیت کا تحفہ رکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بتا دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کابینہ نے توشہ خانہ سے متعلق اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، اہم فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد توشہ خانہ سے صرف $300 مالیت